reflection from plane surfaces और reflection from plane mirror to be precise, जो हम पढ़ने वाले हैं, right? Okay, reflection from plane surface. तो क्या होता है? This is a plane surface which acts as a reflector. We'll call it reflector. If there's a beam of light which falls on this reflecting surface, if there's a beam of light, or say ray of light which falls on this reflecting surface, then part of it gets bounced back in same medium. Part of it gets bounced back in same medium. वापस यही मीडियम में कुछ लाइट आ जाती है, राइट? बट ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी चली जाएगी, राइट? It bounces back in same medium following certain laws. Those laws are known as laws of reflection. So I'll repeat. When light falls on reflecting surface, it bounces back in same medium following certain laws. This phenomena is known as reflection, and laws are known as laws of reflection. So I'll repeat. When light falls on a reflecting surface, part of it bounces back in the same medium. Following certain laws. This phenomena is known as reflection, and the laws which it obeys is known as laws of reflection. सवाल यह है कि ये कौन से लॉज हैं, क्या लॉ है? तो ये लॉ एक्चुअली में याद तो सबको हो जाता है, बट चीज क्या है? जैसे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने ऐसी एक रे ऑफ लाइट डाली, अब ये किधर जाएगी आपको कैसे मालूम चलेगा? अब ये किधर जाएगी कैसे मालूम चलेगा? तो इसको रिफ्लेक्शन के बाद ट्रेस करने के लिए कुछ लॉज आपको समझना है, तभी आप ट्रेस कर पाओगे, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू लॉज बिफोर यू स्टार्ट ट्रेसिंग इट, राइट? तो क्या लॉ है? फर्स्ट लॉ, पहले लॉ बताने के पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज नॉर्मल. नॉर्मल ड्रॉन टू अ सरफेस मींस ये line drawn perpendicular to the surface. Actually, perpendicular word is used for lines. Normal is used for line and a plane. Normal का word का मतलब भी almost perpendicular ही समझ लो आप, but एक plane के ऊपर जब डालते हैं तो हम लोग उसको perpendicular नहीं बोल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं normal. अगर मैं ये यहाँ ये surface इस पे ये perpendicular जा रही है तो ये normal है, राइट? लाइंस को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और प्लेन और लाइन होगा तो नॉर्मल. ओके, हेलो, यस सर. ओके, so now you know what is normal. Normal is a line drawn perpendicular to the surface, kind of. Now नॉर्मल रे बोलूं तो एक बड़ी स्पेशल रे, ये जानने के लिए आपको जरूरत है क्या? नॉर्मल रे एक स्पेशल चीज है. नॉर्मल रे क्या होता है? रे which does not leaves its path. Ray which does not leaves its path. वो यही पाथ में चल रही थी, वापस वही पाथ में चलते रहते. Any ray other than normal deviates from its path or leaves from its path. आ रही बात समझ में?
Yes, Hello. sir. Normal ray is the only ray which does not leaves its path. Is only ray which does not leaves its path. जो अपना पाथ नहीं छोड़ती वो इकलौती रे, नहीं? तो ray normal ray is the ray which does not deviates from its path or does not leaves its path. Okay. Now ये हो गया normal ray. Now let me write the laws. First law. Draw a normal ray. This ray is known as incident ray. Incident ray. Right? This point is known as point of incidence. This is known as point of incidence. Now, this is normal drawn at point of incidence. Normal ray drawn at point of incidence. Right? This angle which incident ray makes with normal at the point of incidence is known as angle of incidence. So I is what? Angle of incidence. This is I. I is angle of incidence. ये हो गया I. ठीक है? सर आपने एक स्टेटमेंट और जोड़ा था कि अनदर रे कैन ओनली डेविएट से कुछ स्टेटमेंट था. Normal ray is only ray which does not leaves its path. Any other ray will deviate from its path. ये ऐसे आई, ये Okay, वापस sir. ऐसे नहीं आएगा. ये ऐसे आई, वापस नहीं आएगा. सिर्फ नॉर्मल रे है जो अपना पाथ नहीं छोड़ती, नहीं? बाकी सारी रेस अपना पाथ छोड़ देती. ठीक है? They deviate from the path. ठीक है? तो I is angle of incidence. Now, aim क्या है? Aim है आपको ट्रेस करना है रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है? तो उसके लिए कुछ लॉस चाहिए. तो सबसे पहला लॉ है इंसिडेंट रे, normal ray and reflected ray lie on same plane. मतलब मुझे रिफ्लेक्टेड रे किसी ने बोला, वो ढूंढ के बताओ. ये इंसिडेंट रे ना, ओके चलो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी. मैं सोच रहा हूँ कहाँ से ढूंढूं मैं. तो मुझे किसी ने बताया पहली चीज कि ये दोनों जिस प्लेन में होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में आएगी. ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन से उचक के बाहर आ जाए. राइट? समथिंग लाइक दिस. इफ दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस बी इंसिडेंट रे एंड दिस बी नॉर्मल, ये नॉर्मल है. राइट? तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी प्लेन में आएगी. किस प्लेन में? जिस प्लेन में ये दोनों है. राइट? अगर ऐसा है तो इस प्लेन में आएगी. राइट? तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे शुड लाई इन सेम प्लेन. कल को आप ऐसा मत कर दो कि इसको उचक के बाहर निकाल लो. ठीक है? तो इसी प्लेन में चलना है. सेकेंड लॉ इज incident ray and normal ray reflected ray lie on either sides of normal. ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे इधर है, इधर ही रिफ्लेक्टेड चली जाए. रिफ्लेक्टेड को दूसरे साइड जाना पड़ेगा. राइट? तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ईदर साइड्स ऑफ नॉर्मल. देन फाइनली द एंगल which the reflected ray makes with normal is known as angle of reflection. R is angle of reflection. ठीक है? तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो उनने क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, I is equal to R. So
I is equal to R, सबसे important ये पॉइंट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। सबसे पहला सवाल यहाँ पे कि इनने प्लेन के साथ एंगल क्यों नहीं लिया? हेलो सर नहीं मालूम से प्लेन के साथ क्यों एंगल नहीं दिया। भाई, आपको ये एंगल बोला, ये I इज इक्वल टू आर। यस अरे सर। ना ड्रॉ करते नॉर्मल, क्यों टाइम पास कराया? इधर पे I लिख देते, इधर R लिख देते तो भी तो दिक्कत नहीं थी। सर तब भी दिक्कत सर होती गलत होता ना सर। एक एक क्यों? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं मेरा होता। क्वेश्चन मैंने कहने वाला है, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे। यस यस ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस आई, यस 90 सर। माइनस आई, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो जबरदस्ती नॉर्मल बनाई, यही बोल देते सरफेस के साथ दोनों एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे। तो सरफेस टेढ़ी मेढ़ी रफ भी तो हो सकती है। हाँ, तो सरफेस टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ऐसा तो कन्वीनियंट नहीं होगा कि मैं ये एंगल मेजर करूं, तो नॉर्मल के साथ तो वो कभी भी एंगल मेजर कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इसके लिए इन्होंने बनाया ये। बाकी ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। एक वर्ड होता है एंगल ऑफ ग्लांसिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। एंगल ऑफ ग्लांसिंग वो कितना होगा? 90 माइनस आई, 90 डिग्री माइनस आई। तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे गिरती है। किस पे? सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट रे डिविएट कितना हुई? डिविएट्स बाय हाउ मच, व्हाट एंगल? इंसिडेंट रे डिविएट्स बाय व्हाट एंगल? एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डिविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन? सर आई प्लस आर। नो, तो सर कितना होगा? एंगल ऑफ डिविएशन। सोचो। सर एंगल ऑफ ग्लैंसिंग इंटू 2 प्लस आर एंगल ऑफ ग्लांसिंग इंटू 2 प्लस आर। नहीं, इनटू कहां कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है किधर जा रही थी फिर किधर जाने लग गई, तो कितना घूम गई। सर 90 डिग्री। नहीं, सर नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। इंसिडेंट रे को हिंट दे रहा हूं, इंसिडेंट रे को मन में आगे बढ़ाओ, देखो कितना जा रही है। सर जितना जितना सर सर आई प्लस आर ही होगा सर। वो नहीं हो सकता, आई प्लस आर ही होगा लगभग। चलो मैं बताता हूँ। आई प्लस आर डिविएशन नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन, ये ऐसे जानी थी रे, 90 डिग्री ऐसे होगा। नहीं जाके, नहीं ऐसे नहीं जाके इधर चली गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये कितना हो गया? ये आई है, ये आर है, तो ये कितना है? अरे इतनी ज्योमेट्री तो सबने पढ़ी है, बताओ। दिस इज आई, दिस इज आर, तो ये कितना होगा? वन 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। ये पूरा 180, इसमें आई और आर हटा दो तो 180 माइनस आई प्लस आर। बट आई और आर तो इक्वल होते हैं, बराबर है, तो इसको 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i इज आंसर, राइट। ये जितना है इसका डबल ये होता है, तो ये और ये इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 90 माइनस आई था, तो इसका डबल 180 माइनस 2i होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज 180। ठीक है। Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ।
if incident ray is rotated by some angle, maybe 10 degree, right? Then by what angle reflected ray will rotate? If incident ray is rotated by 10 degree, then reflected ray rotates by what? Rotates by how much? आप सोच रहे होगे सर इतना सब करवा रहे तो बुक में है ही नहीं, एग्जाम में आना ही नहीं है, एग्रीड। बट अगर रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से फील करना है, दिखना चाहिए चीजें, तो छोटे छोटे क्वेश्चन सुनने से, सोचने से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बताओ, इंसिडेंट रे को मैंने 10 डिग्री रोटेट किया किसी तो डायरेक्शन में, लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आई डोंट नो, किसी डायरेक्शन में रोटेट किया, तो मेरा क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा? सर -10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन, 10 डिग्री इन अपोजिट सेंस, मतलब अगर क्लॉकवाइज होगा इसका रोटेशन तो इसका एंटी क्लॉक, इसका एंटी क्लॉकवाइज तो इसका क्लॉकवाइज, so you can also say -10 degree, right? So if incident ray is rotated by 10 degree, reflected ray rotates by 10 degree again, right? Okay. अगर मैंने मिरर को रोटेट कर दिया एक डायरेक्शन में, let us rotate it by anti-clockwise. So if mirror is rotated in anti-clockwise sense by 10 degree, then reflected ray rotates by, reflected ray कितना घूमेगा? से दिमाग लगाओ। सर सर 10 डिग्री। गलत, ये इंटरेस्टिंग है, 20 डिग्री से घूम जाएगा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। क्या? If incident ray rotates by 10 degree, then reflected rotates by 10 degree. But if mirror itself rotates by 10 degree, तो reflected ray rotates by 20 degree, right? कैसे? भाई आपने इसको घुमाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम हो गया, राइट? अगर आप 10 डिग्री ऐसे घुमा दोगे, 10 डिग्री ऐसे घुमा दोगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हो जाएगा? 10 डिग्री कम नहीं हो जाएगा? yes. तो 10 डिग्री तो ऐसे ही घूम गया वो। चक्कर क्या हुआ, अगर वो 10 ही डिग्री घूमेगा और ये भी तो 10 डिग्री घूम गया तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही दिखा रहे हो, तो एक्चुअली उसको डबल घूमना पड़ेगा तो जाके वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। नहीं समझ? हेलो, ये देखो, ये नॉर्मल है, अगर मैं इसको 10 डिग्री घुमा दूं तो इसके साथ एंगल बढ़ गया, तो उसको 10 डिग्री इधर आना पड़ेगा सेम एंगल बनाने के लिए। बट अब उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कम करना है, तो ऊंचाई और घूमना पड़ेगा उसको। आप घर पे नोटबुक में रीड्रॉ करके देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, क्लियर है? Yes. चलो अब चलते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन with help of
प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन समझते हैं इन प्लेन मिरर। नेचुरली यू वुड हैव स्टडीड दिस इन जूनियर क्लास, बट फिर भी एक बार हम पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो पहले लेंगे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो ले लिया। क्या करना है आपको, ड्रॉ at least two rays from object। सर एक बात बताइए सर, ये कैसे होगा सर, ये एंटी क्लॉकवाइज? जरा समझ नहीं आ रहा, मैंने डायग्राम बना के देखा तो समझ नहीं आता अभी। ओके चलो बता दो, ये पॉइंट आंसर फिर तो इमेज ही बताने लगे हूँ। सी ऐसा होता है, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये रहा इंसिडेंट, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो, अब आपको मिरर रोटेट करना है, आपने मिरर रोटेट कर दिया इतना, कितना 10 डिग्री, ऐसा हो गया। इंसिडेंट रे वही है, इंसिडेंट रे नहीं जा रही, तो आपका नॉर्मल भी रोटेट हो गया, ठीक। हेलो, अरे कुलदीप का डाउट था, यही नहीं अभी क्या हो गया कुलदीप के नेटवर्क को। हाँ सर आ गया मैं। तो ये 10 डिग्री आपने मिरर रोटेट किया, तो उसके साथ आपका Yes, नॉर्मल sir. भी रोटेट हो गया, ठीक है। अब सोचो आप, ये पहले एंगल कितना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस अज्यूम था 30 डिग्री, कितना था पहले Yes, sir. पहले 30. ओरिजिनली इट वाज 30 डिग्री, तो न्यू एंगल कितना हो जाएगा, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस सर 20 डिग्री। 20 डिग्री, ठीक है। तो इसको 10 डिग्री तो वैसे ही घूमना था, बट ये सोचो ना कि नॉर्मल तो इधर आ गया है। यस सर। नॉर्मल ये 10 डिग्री घूमेगा, कौन, Yes, sir. रिफ्लेक्टेड रे। आप सोचो नहीं नहीं 10 डिग्री घुमाऊंगा मैं, तो घुमा लो, लेकिन नॉर्मल भी तो खिसक गया ना, कितना नॉर्मल खिसक गया, नॉर्मल भी 10 डिग्री घूम गया, तो उसको और 10 डिग्री इधर आना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस कर पाएगा। ओके सर, समझा। समझ गया सर। हाँ, तो वो आप एक बार फिर से रफ स्केच लेके अलग अलग कलर का पेन पेंसिल लेके करो, आपको दिखेगा क्लियरली। क्या है, 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, तो इसको 10 डिग्री खिसकना था, बट देखा उसने अरे नॉर्मल भी भाग गया उधर, तो मुझे और इधर जाना पड़ेगा, तब जाके वो एंगल मिलेगा मुझे, राइट। ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही, तो इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे पता करना है कि एक ऑब्जेक्ट जो मैंने सामने रखा है, किसके, मिरर के, राइट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मुझे इमेज कहाँ दिखाई देगा, राइट। तो देयर इज अ मैन हु सीज इट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से देख रहा है आदमी, तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, मिरर के अंदर भी वही ऑब्जेक्ट वापस नजर आएगा। लेट्स चेक कहाँ नजर आएगा, कैसे पता करते हैं, तो ड्रॉ एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 2 रेज डाल दो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी। आई विल ऑलवेज एडवाइस एक नॉर्मल ले लो और एक कोई दूसरी ले लो, ठीक है। नाउ ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, reflected ray, trace the path of reflected ray का पाथ ट्रेस करो, ठीक है, ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है, आया किधर जाएगा वो, ये नॉर्मल कहाँ जाएगी,
हेलो, नॉर्मल कहाँ जाती है? सर नॉर्मल सर जहाँ पर सर परपेंडिकुलर होगा हमारे जहाँ देखेंगे तो। नॉर्मल रे अपना पाथ नहीं छोड़ती, तो नॉर्मल रे जैसे यस गई सर। थी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो नॉर्मल रे तो वापस आ गई। अब ये रे कहाँ जाएगी, इसको ट्रेस कैसे करोगे? इसको ट्रेस करने का मेथड हमने सीखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या बोला था हमने? यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना, रिफ्लेक्टेड रे इस साइड होगी और जितना एंगल ये उतना ही एंगल इधर बना के होगी। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो दो इंसिडेंट रे ली और दो रिफ्लेक्टेड रे आई। ठीक है, हेलो, ड्रॉ टू इंसिडेंट रेज एंड टू रिफ्लेक्टेड रेज उनकी। ठीक है, अब देखो, find the point of intersection, find point of intersection of two reflected rays। ये दो reflected rays जो आ रही है इनका point of intersection निकालो। राइट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? अरे ये तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, पर पीछे एक्सटेंड करके हो रही है क्या? हाँ, जबरदस्ती अगर मैं इधर मान लूं यस कि ये इधर सर। से आ रही हैं जबकि आ नहीं रही इधर से, बट मैं अगर मान लूं कि ये इधर से आ रहे हैं तो यहाँ कहीं पे मीट कर रहे हैं। तो check the point of intersection of two reflected rays, either they will actually intersect, नहीं हुई तो on extending on the other side, on extending it on the other side they will intersect। ठीक है, so find point of intersection of two reflected rays। the point of intersection is image, point of intersection is image of the object, is image of the object। Is it clear? Sir, can you explain again? See, this is the standard method for मतलब लोकेटिंग इमेज की। इमेज बनेगी कहाँ, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है उसको लोकेट करने के लिए इस पूरे चैप्टर में यही है सबसे ज्यादा रे डायग्राम। इस डायग्राम को बोलते हैं रे डायग्राम। राइट, तो 2 3 4 जितनी मर्जी आप रेस यहाँ से इनिशिएट करो, कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग। राइट, Yes, sir. मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी ले सकता था, मेरी चॉइस है। मैंने एक रे हमेशा नॉर्मल लेनी है, क्यों? मेरा काम आसान हो जाता है। अदरवाइज आई कुड टेक एनी ऑफ द 2 रेज। ठीक, तो मैंने 2 रेज निकाली, एक कहाँ जा रही है? सीधा नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो मुझे पता है जो नॉर्मल जाता है वो वापस वैसे ही आता है। नॉर्मल इज द ओनली रे विच सफर्स नो डिविएशन। जो जैसा है वैसे, मतलब एक्चुअली सफर्स डिविएशन 180 डिग्री से, बट समझ लो आपकी पाथ अपना नहीं छोड़ता। नॉर्मल डज नॉट लीव्स इट्स पाथ और डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। नॉर्मल जैसा गया वैसे वापस आ गया। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट रे थी, मैंने देखा रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आ गई। ओके, एक और रे बना दी मैंने ऐसी, मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ जाएगी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किया तो मुझे पता चला वो इधर जा रही है। चलो अच्छी बात है। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड। फिर क्या करना, ये दोनों रेस को इंटरसेक्ट कराना है। इधर तो इंटरसेक्ट होगी ही नहीं, तो शायद पीछे हो जाए। तो पीछे मैंने एक्सटेंड करके देखा, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही। तो ये हो गया मेरा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। तो ये बन गई अपनी इमेज। क्वेश्चन ये है कि दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। रियलिटी में वी डोंट सी एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट? वी सी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। So how to trace image of an extended object? Suppose ये L shape का एक extended object है,
इसका इमेज मुझे इस मिरर पे चाहिए, तो कैसे निकालूं? तो जितने भी स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स हैं, जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन सबका इमेज निकालो अलग से, उन सबका इमेज अलग से निकालो, राइट? जैसे ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। R का इमेज अलग से निकालो। तो यही मेथड फॉलो करके R का इमेज निकालेंगे हम लोग। यहां कहीं R का इमेज आता है, ठीक है? लेट्स नेम इट एज R डैश। Q का अलग से निकालो, ये Q है, Q का यहाँ कहीं पे आएगा, लेट्स नेम इट एज Q। P का अलग से निकालो, P का निकालोगे यहाँ पे आएगा P डैश। अब इनको वापस ज्वाइन करो, अब इनको वापस ज्वाइन करो। तो ये जो पी क्यू आर था उसका इमेज P डैश Q डैश R डैश ऐसा दिखाई देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो ये है मेथड इमेज ढूंढने का। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज इमेज के बारे में। कुछ चीजें, जैसे पहली चीज, देयर इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, कई बुक्स में इसको इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट बोलते हैं। इमेज इज इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट था इमेज का वो राइट बन जाता है, जो राइट था इमेज का वो लेफ्ट बन जाता है। ओके, सो देयर इज, वन सेकेंड, दूर हो तो एक दूसरे, वन सेकेंड। हेलो, यस सर। हाँ, सो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, नॉट अपसाइड डाउन, ऐसा नहीं होगा, बट लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट? सो जो आप अपने आप को इसके अंदर देखते हो, मिरर के अंदर, तो जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट होता है, राइट? देखो ना, आप यहाँ, ये आपका लेफ्ट है, आप यहाँ पे मार्क करोगे तो वो उसके राइट साइड में दिखाई देगा। सो जो आपका लेफ्ट है वो उसका राइट होता है, जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट होता है। तो उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, या इमेज इज इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट, ठीक है? अगली कहानी क्या है? सर वो, सर जो दूसरा इन्वर्जन होगा सर, तो उसे वर्टिकल इन्वर्जन बोलेंगे? अपराइट डाउन बोलते हैं उसको, अपराइट डाउन। अपराइट डाउन, ऊपर का नीचे हो जाता है। सर मैंने या सिर्फ अपसाइड इन्वर्जन, डाउन सुना, अपराइट डाउन नहीं सुना। एक ही बात है। अपराइट मतलब जब आप लैब में जाओगे ना, तो जो चीज लगाते हैं ऐसा नीडल जैसा होता है, उसका नाम ही अपराइट होता है। एक होल्डर रहता है, उस होल्डर में उसको फिट करते हैं, राइट? तो उस चीज को अपराइट डाउन, अपराइट बोलते हैं। तो अपराइट होता है, उसी को अपराइट डाउन बोलते हैं। बाकी इंग्लिश वाली बात है, कुछ भी बोल रहे हैं, अपसाइड बेटर होगा। तो जो हम लोग लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसमें एक नीडल जैसा होता है, पॉइंटर होता है, उसको अपराइट बोलते हैं। तो इसके लिए मेरी आदत है अपराइट, जो आपके बुक में लिखा हो पढ़ लो, है ना? बाकी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इन्वर्टेड बोला तो भी बाय डिफॉल्ट इट मींस अपसाइड डाउन, राइट? अगर इन्वर्टेड बोला तो उसका मतलब ही अपसाइड डाउन होता है। इस इन्वर्जन को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, या तो फिर लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image from the surface is same as distance of object from the surface. I'll repeat, distance of image from the surface is same as distance of object from the surface. वापस बोलूं? Yes, sir. जो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से है, राइट? इफ यू सी यहाँ पे सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पे आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख रहे हैं?
ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस है इमेज का, तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम. So image distance and object distance. Object distance and image distance from reflecting surface. From reflecting surface is same. So object distance and image distance are same from रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कहां से, सरफेस से सेम होता है. ये देखो, ये सरफेस है, सरफेस से ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज इमेज डिस्टेंस. नहीं, फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज same as the size of the image. अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे. मैंने कहा क्या लिखा हुआ, जब मैं स्टूडेंट था मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. मैं सोचता था ये सामने मिरर रखा, पीछे की बिल्डिंग दिख रही है मुझे, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है और वो तो छोटा सा दिख रहा है. तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज. तो एक्चुअली यहाँ पे साइज का मतलब क्या होता है, यहां से बिल्डिंग का साइज जो है उतने ही साइज का मुझे इमेज ऑफ बिल्डिंग दिखाई देगा. साइज हियर मींस अभी ये मेरे लिए कुछ साइज है, अगर इसको दूर ले जाओगे तो ये मेरे लिए छोटा हो जाएगा. क्यों? जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, ये एंगल कितना आपके आईज पे बना है. Apparent size of any object depends on the angle which its extreme points subtend at your eyes. अगर ये एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, ये एंगल बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए बड़ा है. ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, दूर जाते बहुत छोटा हो जाएगा. सो दिस ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉल टू मी, राइट. सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट आर सेम मींस व्हाट. एक्चुअल में आपको बिल्डिंग का हाइट नहीं देखनी, तो आपको क्या देखना है, अपरेंट साइज. वो कितना एंगल आपके आईज पे ऑब्जेक्ट बना रहा है उतना ही एंगल आपके आईज पे इमेज बना. ओके, नेक्स्ट, दिस इज रियल और वर्चुअल. तो इमेज इज वर्चुअल, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है. क्यों? बैक साइड ऑफ द मिरर में बनती है, मिरर के पीछे बनती है, राइट. मिरर के पीछे बनती है. तो मिरर के पीछे बनती है, जो मिरर के पीछे बन रहा है वो आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा, राइट. सो इमेज इज वर्चुअल. क्लियर? हेलो हेलो. Yes, sir. So image is virtual. Now, next one. Important issues you have. तो अच्छा, वर्चुअल इमेज आप कैमरा में कैप्चर कर सकते हो, रियल इमेज आप स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हो. वर्चुअल जो इमेज है वो स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते, राइट. बट कैमरे में कैप्चर कर सकते हो. सर कैसे? मैं पूछ रहा हूँ, कैन यू कैप्चर वर्चुअल इमेज ऑन? नो सर, नो सर, वर्चुअल इमेज नहीं कर सकते क्योंकि सर वो तो अब मिरर्स पे बनती है ना. हाँ, तो कब तो भी कर सकते हैं बेटा. कभी आपने सेल्फ मिरर में अपनी फोटो नहीं खींची? सर खींची है. बस, तो फिर मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल थी, तो वर्चुअल इमेज आपने कैमरा में कैप्चर करी कि नहीं करी? तो वर्चुअल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा, दो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. स्क्रीन में आने के लिए वो रेज वहां मिलनी चाहिए. कहाँ पे? स्क्रीन पे. बट स्क्रीन आप कहाँ रखोगे? मिरर के सामने रखोगे तो वहां तो मिलती नहीं है, मिरर के पीछे रखोगे तो वहां पहुंचती नहीं है, तो स्क्रीन में आएगा नहीं. बट यू कैन कैप्चर इट ऑन कैमरा. क्यों? कैमरे को भी ऐसा ही लगता है जैसे रे यहां से आ रही, तो यहाँ पे उसकी इमेज बना के रखते हैं. ऑलराइट, ओके. देन फिफ्थ,
if object moves towards mirror with 5 meter per second, its image also moves with 5 meter per second towards the surface. अगर आप 5 मिनट धीरे धीरे चलोगे तो इमेज भी आपका धीरे धीरे आगे आएगा. You're walking this way, वो भी इस तरफ वॉक कर. तो इमेज का स्पीड सेम एज योर स्पीड, डायरेक्शन उल्टा होगा. आप मिरर की तरफ जा रहे हो, मतलब समझो मिरर राइट साइड में रखा तो आप राइट साइड जा रहे हो, तो इमेज बाहर की तरफ आएगा, मतलब लेफ्ट साइड आएगा, राइट. तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर विद 5 मीटर पर सेकंड, इट्स इमेज also moves with 5 meter per second towards the surface. Okay, clear है? Hello. Yes sir, clear है. Yes sir, clear. Okay. Now, दो और छोटे छोटे पॉइंट्स याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी एग्जाम में तो नहीं आने वाले. सपोज आपको अपनी फुल बॉडी देखनी है एट अ टाइम. Suppose you want to see your full body at a time. तो आपको कितने साइज का मिनिमम, कितने साइज का मिरर लगेगा? तो सपोज दिस इज यू, तो यहाँ आपकी आईज है, ये आपकी आई है और ये आपका फुट है. तो आपके सामने एक मिरर रखा होगा, कितना बड़ा मिरर लगेगा आपको? सबसे कम साइज का. तो मिनिमम साइज का जो मिरर, हाफ द साइज. वाई? ये आपका फुट से जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक आनी चाहिए. तो ये जो एंगल है, ये जितना हाइट है उसका हाफ हाइट यहाँ होनी चाहिए. तो इफ योर हाइट इज h एंड यू वांट टू सी योर फुल बॉडी एट अ टाइम, तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी h/2. तब आप पूरा एट अ टाइम अपने आप को देख पाओगे, नहीं तो पूरा आप नहीं देख पाओगे. राइट? क्लियर ना? ओके, लास्ट वन. अगर आप दो मिरर्स इंक्लाइन रखते हो एक दूसरे के इंक्लाइन रखते हो मिरर, जैसा ये, ऐसा ये एक मिरर है और एक ये मिरर, इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा या एक्स ले दो. तो एक्चुअली ये सलून में आपने देखा होगा, सलून में आप देखते हो ना, तो इमेज मतलब थोड़ा से मिरर टिल्टेड रहते हैं, राइट. तो व्हाट यू सी इज, ऐसे मिरर थोड़ा सा टिल्टेड रहते हैं, राइट. तो मिरर के अंदर इमेज के अंदर ऐसे बहुत सारी इमेज दिखती हैं. तो कितनी इमेज दिखेंगी? सो 360 by theta minus 1. This many images are seen in the two mirrors kept at some angle theta. Two mirrors kept at some angle theta. All right. सर इनफाइनाइट इमेजेस बनती है ना सर उसमें? नहीं, इनफाइनाइट. अगर पूरा फुल ऐसा 0 डिग्री हो जाएगा तो इनफाइनाइट बनेगी. लेकिन अगर आप एंगल पे रखोगे, ऐसा राइट एंगल्स पे रखोगे, तो थोड़े ना इनफाइनाइट बनेगी. तो खाली 3 इमेज बनती है. हेलो. ओके, चलो आई विल स्टॉप हियर. इतना ही था प्लेन मिरर में. नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कर्व्ड मिरर्स, राइट. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ओके सर. मिरर. ओके, चलो उसको रिवाइज करना अच्छे से. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.